Hello everyone. So in this video we are going to study the preparation of alcohol using our very famous reagent. Okay, तो basically ये reagent सबसे ज़्यादा popular है and the name of this reagent is Grignard reagent. Okay, so ये है basically alkyl magnesium halide. So that's basically RMgX. Correct? तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यू नो ग्रिग्नार्ड इज वेरी पॉपुलर क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप को प्रिपेयर कर सकते हैं राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये होते क्या है राइट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज RMgX। करेक्ट, RMgX उसमें R का पोलैरिटी होता है पार्शियल नेगेटिव एंड MgX इज बेसिकली partially positive. Correct. तो how can you prepare alcohol using Grignard reagent? Okay, तो basically Grignard reagent के साथ हम use करेंगे carbonyl compound. Okay, so these carbonyl compounds are going to be aldehydes, ketones and so on. तो in general हम देखते हैं, look here. So you have this carbonyl compound, correct? और अगर मैं इसको treat करता हूँ with Grignard reagent that is RMgX. Okay, तो ये RMgX में R is partially negative and MgX is partially positive, right? तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया पोलराइज, this gets partial positive charge, this gets partial negative charge, तो R will go to C, right? तो in this reaction you will be having dry ether as the medium of solvent, correct? तो हमें क्या मिलेगा? So you will be having carbon, now this is connected to OMgX, correct? ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड और R आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट? तो ये है अनस्टेबल कंपाउंड। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H+। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज दिस बॉन्ड विल ब्रेक, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, राइट? तो हमें क्या मिलेगा? सो वी विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। सो यू हैव R एंड दिस इज OH, करेक्ट? प्लस Mg यहाँ पे हो जाएगा OH and then here it's going to be X, right? So now let's see what exactly happens over here, right? तो अब इस R को देखते हैं। Now this OH is connected to carbon and this R, right? So again you have an alcohol, right? So अगर ये हाइड्रोजन होंगे, ये हाइड्रोजन होंगे, तो this is going to be primary alcohol and so on, right? तो अब हम देखते हैं बेसिक रिएक्शंस, ठीक है? तो लेट्स डू सम बेसिक रिएक्शंस। हमने जनरल कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन तो देख लिया, ठीक है? अब हम देखते हैं व्हाट विल हैपन इफ इट्स एन एल्डिहाइड। सो लेट्स से यू हैव डबल बॉन्ड O, राइट? एंड देन दिस इज ट्रीटेड विद RMgX, ठीक है? और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ H, करेक्ट? तो व्हाट डू वी गेट? द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट? हमें क्या मिलेगा? सो यू विल बी हैविंग CH and then there is going to be OMgX and there is going to be R, right? तो ये है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड और इसका हाइड्रोलिसिस होगा और हमें मिलेगा CH and there is going to be R and there is going to be OH, right? Correct? तो can you see this? ये कार्बन, okay? So ये है अल्डिहाइड ग्रुप, करेक्ट? और ऑब्वियसली यहाँ पे मैं R लिख देता हूँ, ठीक है? तो can you see this aldehydes give, so ये this carbon is connected to two carbons, right? तो basically ये कौन सा अल्कोहल हुआ? ये अल्कोहल है 2 डिग्री, right? तो can you see this? This is 1 degree carbon that gave 2 degree alcohol. तो can you see the degree of carbon is increasing? अगर 1 degree carbon ने 2 degree alcohol दिया, तो 2 degree carbon क्या देगा? Obviously 3 degree alcohol. Let's try to see. अब 2 degree carbon का एक कंपाउंड देखते हैं. So that is basically acetone. ketone, RCR double bond O, this is 2 degree carbon. Now इसे मैं ट्रीट करूंगा with RMgX, ठीक है? RMgX in presence of obviously dry ether. So this is partially negative, this is partially positive, ठीक है? और यहाँ पे होगा partial negative and MgX is going to be partially positive. तो R जाएगा C के पास, right? तो हमें क्या मिलेगा? So we will be getting RCR and there will be this R and then there is going to be OMgX, ठीक है?
ना अब ये है ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड और इसका हाइड्रोलिसिस होगा. सो व्हाट डू वी गेट हियर? वी गेट आर सी आर आर, राइट, और यहाँ पे मिलेगा OH. ओके, सो डिड यू ऑब्जर्व दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन, राइट? तो ये है 2 डिग्री कार्बन और मुझे मिला 3 डिग्री अल्कोहल. करेक्ट. सो दिस इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, राइट? तो मुझे प्राइमरी कार्बन से सेकेंडरी मिला, सेकेंडरी से टर्शियरी मिला. ओके, तो आई गॉट, यू कैन से aldehydes give secondary alcohols. Okay, ketones give tertiary alcohol, right? तो अब प्राइमरी अल्कोहल अगर मुझे चाहिए तो क्या चाहिए, राइट? तो जस्ट इमेजिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं HC एंड इफ आई पुट H एंड देन डबल बॉन्ड O, राइट? तो सबसे पहले ये O बन जाएगा OMgX और फिर बन जाएगा OH, राइट? सो HCH, यहाँ पे मैं लिखता हूँ RMgX, राइट, एंड आई राइट ईथर, ड्राई ईथर ओवर हियर, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा R और यहाँ पे आ जाएगा OH. करेक्ट. तो कैन यू सी ये कार्बन, दिस कार्बन इज नॉट अटैच्ड टू एनी कार्बन, तो यू कैन कंसिडर इट 0 डिग्री. सो यू गेट प्राइमरी अल्कोहल, राइट? तो याद रखना है aldehydes give 2 डिग्री अल्कोहल, ketones give 3 डिग्री अल्कोहल एंड formaldehyde will give you 1 डिग्री अल्कोहल. ओके, सो दिस इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. सो बेसिकली आपने क्या कर दिया, ये जो C डबल बॉन्ड O है उसको कन्वर्ट कर दिया C सिंगल बॉन्ड OH में. दिस इज द ओनली लॉजिक ऑफ दिस रिएक्शन. ओके, अब हम इस लॉजिक को यूज करके कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स. तो मेरे पास है CH3, मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट्स चाहिए, कोई इंटरमीडिएट में नहीं लिखना चाहता. CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये है एसिटिल्डिहाइड, and then you have CH3 and then there is going to be C and there is going to be H, sorry not H, so I will just get rid of this H. ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और CH3 and then there is going to be double bond O, right? और इसको मैं ट्रीट करूंगा with RMgX. करेक्ट. और अब मैं बिना इंटरमीडिएट लिखे हुए I just want to have the product directly. करेक्ट. So this is and then followed by hydrolysis. ठीक है, so RMgX in ether followed by hydrolysis. तो H3O plus लिखता हूँ, एसिड कैटेलाइज्ड है. तो बेसिकली क्या करना है मुझे, C डबल बॉन्ड O ये जो है ना इसको कन्वर्ट करना है C सिंगल बॉन्ड OH, राइट? तो I'll have CH3 and then there is going to be C, there is going to be H, this gets converted to OH because OMgX बनता है और R चला जाता है यहाँ पे, राइट? ठीक है, और यहाँ पे देखिए you have CH3 and then you have C, there is this CH3, करेक्ट? डबल बॉन्ड O बन जाएगा सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे आ जाएगा R to complete the valency. तो can you see this? You get a tertiary alcohol and you get a secondary alcohol. ठीक है, अब एक काम करते हैं, let's say if you have HC, H डबल बॉन्ड O, राइट? और इसे मैं ट्रीट करूंगा with C2H5 MgI, राइट? तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए. तो मुझे मिलेगा H, this is connected to C, this is connected to H, this is connected to OH, right? And this is going to be connected to C2H5. So again, can you see? So this carbon is connected to one carbon directly, so this is 1 degree alcohol. Very simple. Okay, so this is nothing but using Grignard reagent. So you can say formaldehyde 0 degree carbon है तो 1 degree alcohol. Other aldehydes means 1 degree carbon gives 2 degree alcohol, and then ketones will give you 3 degree alcohol. Very, very simple to understand. Okay, now so this was about the Grignard reagent. ठीक है, now अब मैं आपको बताऊंगा एक shortcut. I will not discuss this too much, okay, but I'll just give you one very simple hint. ठीक है, मेरे पास है RCH, then I have this OH and I have this R dash, करेक्ट? और मुझे ये पता करना है किस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैंने इसको बनाया है, राइट? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपने क्या किया था, डू यू रिमेम्बर? RCH डबल बॉन्ड O है, राइट? इसको यहाँ तक कैसे पहुंचाया, सबसे पहले आपने बॉन्ड को तोड़ दिया था और यहाँ पे डाल दिया था OMgX, दिस बिकेम OH फाइनली, और यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R डैश आ गया था, राइट? करेक्ट. अब आप उल्टा करेंगे, सबसे पहले इस H को निकाल देंगे और बना देंगे डबल बॉन्ड, और इस R को निकाल देंगे और लिख देंगे MgX. So what is that which you get? It is nothing but RCH
डबल बॉन्ड O प्लस R'(MgX). ठीक है, वेरी सिंपल। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? द फर्स्ट पॉइंट इज सबसे पहले कार्बन कार्बन कोई भी एक बॉन्ड आप तोड़ दो, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH में से H निकाल के वहां पे डाल दो डबल बॉन्ड, वेरी सिंपल। अब देखते हैं इस कंपाउंड का प्रिपरेशन, राइट? तो यू विल बी हैविंग CH, राइट? और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CH3 एंड देन देयर इज गोइंग टू बी एन OH, करेक्ट? तो मेरे पास यहाँ पे देखा जाएगा तो दो चॉइसेस है। मैं इसको अगर तोड़ के यहाँ पे MgX डाल सकता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। सो यू विल बी हैविंग दिस कनेक्टेड टू MgX, राइट? और यहाँ पे H को निकाल दिया, मुझे मिल गया C डबल बॉन्ड O, देयर इज दिस H एंड देयर इज दिस CH3। ठीक है, अब दूसरी तरफ से तोड़ देते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं तो व्हाट डू वी गेट? यू गेट CH3 MgI MgX, okay, plus you have the benzene ring, very simple, correct ना? benzene ring, this is connected to C, this is connected to H, मैंने इसको निकाल दिया तो this became double bond. Disconnect the carbon carbon bond, remove the hydrogen from OH and put the double bond, very simple this is, okay? So ये था shortcut using Grignard reagent, okay? So this was about the Grignard reagent. अब हम देखते हैं कुछ examples. Okay, examples तो basically very simple. So let's say if I have something like CH3, ठीक है, and then this is going to be C and this is going to be CH3 double bond O, right? और इसको मैं treat करता हूँ phenyl magnesium iodide, right? So what do I get here directly? I can directly put this pH here और मुझे मिलेगा CH3 single bond C and this is going to be CH3 and this is going to be OH and this is going to be pH, right? Correct, very simple. So we have done lot of reactions, so मैं अब ज्यादा reactions और नहीं दूंगा, ठीक है? So this was about the Grignard reagent and carbonyl compound. अब हम देखेंगे एक सेपरेट वैरायटी दैट इज कॉल्ड एज इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स क्या होते हैं? इपॉक्साइड्स कंपाउंड्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दो कार्बन के बीच में होता है एक ऑक्सीजन, राइट? इसे हम कहते हैं ऑक्सीरेन। दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीरेन और इसका दूसरा नाम है इथिलीन ऑक्साइड। ओके, क्यों इथिलीन ऑक्साइड बोला जाता है इसको? ध्यान से देखिए। सो व्हाई इज इट इथिलीन ऑक्साइड? सो यू हैव CH2, राइट? डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट ना? मैंने इस डबल बॉन्ड को निकाल दिया और डाल दिया ऑक्सीजन, तो CH2 करेक्ट? तो यह है इथिलीन ऑक्साइड, वेरी सिंपल। अब हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कैसे होगा, राइट? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यू लेट्स टेक दिस कंपाउंड, ठीक है? यह है इपॉक्साइड एंड नाउ आई एम ट्रीटिंग दिस विद CH3 MgI। Obviously, reaction किस में होना चाहिए? It is understood, it's dry ether. Very simple, right? So now if you could see here, oxygen का electronegativity ज़्यादा है, तो this is partially negative. This makes it partially positive. Molecule symmetric है, right? तो अब क्या होगा? Polarity इसमें डालते हैं. This is partial negative. MgI is partial positive, right? तो अब कौन कहाँ जाएगा? ये जाएगा डेल्टा पॉजिटिव की तरफ, MgI की तरफ जाएगा ये और बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। तो हमें मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी OMgI, राइट? और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा CH3, करेक्ट? अब होगा हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटलाइज्ड, करेक्ट? सो व्हाट डू वी गेट? द बॉन्ड विल ब्रेक, one H comes here, one OH comes here. तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले मॉलिक्यूल को लिख देते हैं, करेक्ट? और OMgI बन जाएगा OH, very simple, right? So this is one, correct? So this was about the epoxide. Now I'm going to give you a very simple example. Now can you see this? इसमें कार्बोकेटायन का रिएक्शन हो रहा है, राइट? तो डोंट यू थिंक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ज्यादा रिएक्शन देगा, राइट? सो नाउ आई वांट यू टू थिंक अबाउट वन रिएक्शन, one challenge which I am going to give you, okay? और आपको मुझे बताना होगा कि प्रोडक्ट क्या है, correct? So this is going to be your challenge, okay? Now it is tedious, my dear students, you are preparing for entrance exam, so I need to make sure कि आपका जो preparation है काफी
अच्छा होना चाहिए. So I'm just giving you one challenge. Okay. So CH3MgI, right, and this is treated in presence of dry ether, right. अब आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है ना. ये C2H5 यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा. प्रीवियस मॉलिक्यूल सिमेट्रिक था, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी योर चैलेंज फॉर टुडे. ओके, एंड फॉर दिस टाइम and then I will definitely display the video, but once the lockdown gets over and once you come to the class. Okay, so this is basically an assignment reaction. Okay, so इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि C2H5 अटैक कर रहा है तो ये एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ अटैक होना चाहिए. एक तरफ से, दूसरी तरफ से C2H5 न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इट शुड बी ओके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन. अभी आपको ये सोच समझ के इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है. So this was about the reaction of Grignard reagent with epoxide. Okay, अब आते हैं इसके नाम की तरफ. इसको कहते हैं oxirane. तो the name of this compound is basically methyl oxirane. Okay, so this was about the Grignard reagent and its reaction. Okay, so I hope Grignard reactions आप काफी करेंगे, and I mean you'll do lots and lots of Grignard reactions so that your practice improves. Okay, so we are done for this video. Thank you. Okay, I think examples you can do, right? Yes.